to the Mad Educators free classes. Hi students, hope you and your family members are safe. Today we are going to discuss the topic that is elements, then compounds and mixtures. In the previous video, we had discussed about the different states of matter, that is the solid, liquid and gas. Okay, we had seen different terms like the condensation, evaporation, what is sublimation, deposition. Okay. In this video, we will discuss what is element and what are compounds and what are mixtures. And we will also see difference between the compounds and mixtures. So in the picture given here, what you can see? You can see the rod. You can see iron rod, जो जंजीर होती है, isn't it? This one is rusted and this is not rusted. Okay. In the second picture, you can see some red substance. What is this? It is copper. Okay. It is copper. Copper wires which we use in our daily lives. हमारे यहाँ पे जो electricity के wire हैं, those are made up of copper only, ना? Then, what is this picture showing? This picture is showing three images. These all are different forms of zinc. Okay. What are these? These are the different elements which are found in the nature. By the help of metallurgy, we extract it from the earth. Okay. The copper, zinc, iron, these all substances are found from the earth only. अर्थ से ही मिलते हैं हमें. डिफरेंट सॉल्ट्स के रूप में अर्थ में प्रेजेंट रहते हैं ये. ओके. Now coming to the another point, what is element? होता क्या है element? Element is the purest or you can say simplest form of the substance found on the earth. Okay. Element cannot be divided into much simpler form. इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर एक मान लीजिए एक आयरन की ये जिस तरीके से यहाँ पे जंजीर है, इसकी अगर आप ब्रेक करना चाहें तो इसके एक जो पीस है उस एक पीस में भी आयरन ही होगा. इसको ब्रेक करने के बाद अगर हम एक छोटा पीस इसका निकाल देते तो ऐसा नहीं है कि छोटे पीस में आयरन नहीं होगा. All these smallest piece, इसके और भी small piece कर दें, even the small scrapped particle will be called iron. It will give the same property of which the iron big block shows. ना, एक बड़ी सी आप रॉड ले लीजिए, वो आयरन की रॉड भी वही प्रॉपर्टी शो करेगी जो ये इतना सा स्मॉल पार्टिकल शो करेगा. ओके. सो एलिमेंट को जब हम तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, देन वी आर मीनिंग बाय इट दैट वी आर ब्रेकिंग इट डाउन फिजिकली, ना. इस तरीके से आयरन ही रहेगा. इट विल बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस ओनली. एलिमेंट सबसे सिंपल सब्सटेंस है जो नेचर में पाया जाता है. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस. First of all, Robert Boyle in 1661, he was the first scientist who used the term element. Then after him, the Lavoisier was the first who gave a definite definition for the element. What is element? He defined it like this. Element is a substance that cannot be broken down into simpler substance by chemical reactions. मतलब अगर हम देखना चाहें कि मान लीजिए हमने आयरन का एक पीस लिया, अगर हमने उसको वाटर के साथ ट्रीट किया या हमने समझिए ऑक्सीजन के साथ ट्रीट किया और वी हैव ट्रीटेड इट विद सल्फर, व्हाटएवर आप सब्सटेंस यहाँ पे ले लीजिए, वेदर इट इज अ कंपाउंड और एलिमेंट, कुछ भी यहाँ पे आप लेंगे, पर आयरन जो है Fe से और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं हो सकता है. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. Now, coming to the another point, element को further divide किया गया है into three groups. What are these? These are matters, then metalloid, and third one is non-metals. Matters, as we are familiar with the हमारे surrounding में different metals पाए जाते हैं. Iron, aluminium, copper, all these are metals only, ना. On the basis of characteristic, we can divide these substances into different groups. Okay. Metals are those type of elements which are lustrous. What do you mean by the word lustrous?
लस्टर का मीनिंग होता है एक चमक होना। जब आप आयरन का पीस देखते हैं उसमें एक शाइन होती है, एल्यूमिनियम का है उसमें भी एक शाइन होती है, दैट शाइन इज कॉल्ड एज द लस्टर। ईच मेटल इज हैविंग अ लस्टर। अब ये बात अलग है कि सोडियम का पीस है या आयरन का कोई भी पीस है, आप कहेंगे हमारे यहाँ टेबल है पर उसमें तो शाइन नहीं है, बिकॉज ड्यूरिंग द टाइम क्या होता है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, दैट लेयर मोस्टली ऑक्साइड होते हैं या कार्बोनेट्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल्स। दिस ऑक्साइड लेयर कॉजेस द लूज ऑफ लस्ट्रस नेचर। पर ऐसा नहीं है कि ये फिर चला जाता है तो फिर हमें मिलता नहीं है। व्हाट वी कैन डू, वी कैन कट इट विद द नाइफ। दिस पार्टिकल को अगर हम एक पर्टिकुलर आर्टिकल को, या आप समझिए एक आयरन की रॉड है, आयरन की रॉड ऊपर से ब्राउनिश हो गई है और आपने उसको ब्रेक डाउन किया दो पीसेस में, तो जो ब्रोकन एंड्स होंगे, दैट एंड्स ईच एंड विल शो अ लस्टर। दिस सरफेस freshly cutted surface will show a luster. So this is a basic property of the matter. We can also discuss different properties of the matters, like they are good conductor of heat and electricity. Then they are malleable. What do you mean by the term malleable now? Malleable मतलब अगर आप उसे हैमर लेके, हथौड़ा लेके पीटने जाएंगे तो that would be changed into sheets. Ductile. What do you mean by ductile? डक्टाइल का मतलब होता है कि उससे आप वायर बना सकते हैं। अ मेटल कैन बी स्ट्रेच्ड इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। सोनोरस, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सोनोरस? जिस तरीके से आप किसी चीज पे, आपके आयरन की रॉड अगर आपने हाथ में ली है और आपने उसे गिरा दिया तो कुछ आवाज आती है, टन, दैट इज द मेटल्स आर सोनोरस। ईच मेटल्स आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सोनोरस. Then mostly the metals are solid. Exception is the mercury. Mercury is liquid at room temperature. Then coming to the metalloid. What are the metalloids? Metalloids are those substances which are showing the property of half of metals and half of metals, non-metals. Means ये कुछ metals की तरह की property show करते हैं and कुछ non-metals की तरह। Okay, so first we will see non-metals. Non-metals की property, they are non-lustrous. Okay, no luster is present in them. Then second is they are bad conductor of heat and electricity. Then third is that they are brittle. What do you mean by the term brittle? अगर आपने उसे हैमर से मारा तो जिस तरीके से हमने मेटल्स में देखा था कि वो शीट्स में बदल जाता है, पर ब्रिटल होने का मीनिंग क्या है, वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ओके, जिंक इज एन एक्सेप्शन विच इज बीइंग अ मेटल बट वो ब्रिटल होता है। ओके, then non-malleable, this we have already discussed. Now mostly gases, non-metals mostly gases होती हैं except bromine which is a liquid. So now coming back to the, अभी हमने metalloid छोड़ दिया था। metalloids क्या होते हैं? ऐसे substances which are showing the property, कुछ metals की जैसी property show करते हैं और कुछ non-metals की तरह। इनमें luster होता है like metals, they are semiconductor and have properties between metals and non-metals. तो दोनों की तरह की प्रॉपर्टी ये शो करते हैं। दैट इज वाई इन द पीरियोडिक टेबल जहां पे हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं वहां पर भी इन्हें मिडिल स्पेस मिलती है बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, दैट इज कंपाउंड। सेकेंड टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कंपाउंड। As we had discussed, अभी हमने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म और यू कैन से सिंपलेस्ट फॉर्म। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एक डेफिनेट रेशो में मिलने के कारण बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर कहा कि कंपाउंड का एक एग्जांपल हम देखते हैं जैसे H2O, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वाटर। यही आपको पढ़ाया जाता है कि वाटर का फॉर्मूला H2O है। आप क्वेश्चन कर सकते हो कि हम फॉर्मूला ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, क्या HO2 को वाटर नहीं कह सकते, या हम कह दें कि H2O2, क्या हम इसे वाटर कह सकते हैं? नो, दीज आर नॉट द फॉर्मूला ऑफ वाटर, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, देन ओनली वी कैन से इट इज अ वाटर मॉलिक्यूल।
सो वाटर मॉलिक्यूल इज अ कंपाउंड। तो एक डेफिनेट रेशो होता है तभी वो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ लेट्स कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर वो सब्सटेंसेस है जब हम दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड्स को मिक्स कर रहे हैं, बट इन एनी रेशियो। जिस तरीके से आप फ्रूट सैलेड खाते हैं, फ्रूट सैलेड में जरूरी नहीं है कि हम एग्जैक्ट क्वांटिटी में हर चीज ऐड करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो चेरी है वो सिर्फ 3 पीस पड़ी है, बट एप्पल के पीसेस बहुत ज्यादा है, इजंट इट? देन यू कैन से स्ट्रॉबेरी भी है, बट ओनली 3 पीसेस आते हैं, इजंट इट? सो यू कैन से दिस इज अ मिक्सचर। अब यहाँ से अगर आप चाहें तो इन सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट कर सकते हैं। कोई बच्चा है उसको एप्पल पसंद नहीं है ज्यादा, तो उसमें से चेरी और स्ट्रॉबेरी को छाट छाट के वो सेपरेट कर लेगा और खा लेगा, है ना? सो दिस इज अ मिक्सचर। बट कंपाउंड में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने एक वाटर लिया एक स्पून में और उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट आउट कर दिया। क्या पॉसिबल है ये? नो, ना? सो दीज आर द कंपाउंड जो हम सिंपलर मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। किसी भी कंपाउंड में से एलिमेंट्स को सेपरेट नहीं किया जा सकता। दिस वुड बी मोर क्लियर अगर हम ये डिफरेंस के पॉइंट्स देखेंगे। कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स एलिमेंट्स जब एक डेफिनेट रेशो में फॉर्म कंबाइन करते हैं, देन ओनली कंपाउंड्स आर फॉर्म। देन मिक्सचर्स तब बनते हैं जब कंपाउंड्स एनी रेशो में मिक्स्ड टुगेदर हैं। Now, second point is composition is fixed as just now we have seen. पानी का मॉलिक्यूल अगर हम देख रहे हैं तो सिर्फ H2O ही फॉर्मूला होता है। एक ऑक्सीजन एटम 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन करके वाटर मॉलिक्यूल बनाता है। देन मिक्सचर्स कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। या तो आप स्ट्रॉबेरी भर दीजिए पूरे सैलड में, या आप चाहे तो एप्पल्स भर दीजिए। तो मिक्सचर की तो कंपोजिशन हम वेरी कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज हर बार एक न्यू सब्सटेंस बनता है। हाइड्रोजन जब कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ, देन इट वुड फॉर्म वाटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये मैजिक है। हाइड्रोजन बीइंग अ गैस, ऑक्सीजन बीइंग अ गैस, बट वाटर इज लिक्विड, है ना? तो न्यू सब्सटेंस बना। बट मिक्सचर में तो ऐसा नहीं हो रहा है। एप्पल और स्ट्रॉबेरी डाला तो वो वही रहेंगे, है ना? इट वोंट बी चेंजिंग इनटू अनदर फ्रूट। ना fourth point is constituents can be separated by chemical और electrochemical reactions. अगर हम देखें वाटर में जब आप करंट पास करेंगे, इस तरीके से नहीं कि आपने जाके पानी के टब में इलेक्ट्रिक वायर डाल दिया, दैट इज नॉट द वे। रिएक्शंस होती हैं जिनमें हम टम्बलर में वाटर फिल करते हैं, देन इलेक्ट्रोड्स को डिप करके उसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं। Okay, then on passing the current, water molecule can be broken down into hydrogen and oxygen gas. तो कंपाउंड वाटर को इस तरीके से नहीं हम सेपरेट कर सकते कि हमने स्पून में लिया और हमने उसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज अ कंपाउंड। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या कोई केमिकल रिएक्शन से हम इन्हें सेपरेट कर सकते हैं। मिक्सचर्स क्या है? मिक्सचर का आप सिंपल एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये सैलेड क्या है? सैलेड कैसे सेपरेट होगी? आप हैंड पिकिंग से सेपरेट कर लीजिए, है ना? नाउ कमिंग टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक, वी विल समराइज होल टॉपिक। वी हैव स्टडीड, क्या पढ़ा हम लोगों ने आज? सब्सटेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं, दैट इज एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स। मिक्सचर क्या है? जो जैसे आप मिक्सचर खाते हैं घर में, नमकीन जो खाते हैं उसमें डिफरेंट ऐसा नहीं है कि सेव की इतनी क्वांटिटी है और दाल की इतनी क्वांटिटी है। दे कैन बी मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। कंपाउंड्स क्या है? देयर आर large number of compounds can be formed by combination of different elements. Okay, अब elements हमने पढ़ा simplest form of the substance. Okay, so in the next video we will discuss different type of mixtures, heterogeneous, homogeneous. What are heterogeneous and homogeneous mixture? We will discuss in next topic. Then we will also see colloid क्या होते हैं, suspension क्या होते हैं, और true solution क्या होते हैं. What is Tyndall effect? This all we will learn in the next video. अगर इस वीडियो में कुछ आपको नहीं समझ में आया है, आपका कोई फीडबैक है, कमेंट है, I will appreciate it. Do like and subscribe the channel. Thank you. Study well.